پوچھنا چاہتا ہوں آخر کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں۔ تم پر 5 نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں۔ تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو۔ مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح؟ میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4۔ تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ۔ میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں اور تم میں فرق کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا؟ میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کے ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح۔ تو اپنی ذات کو دیکھ، آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر، مجھے بتا دے، سمجھا مجھے کہ تو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے۔ ارے تو تھوک کے دیکھ، تھوک کے دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں، ارے تیرے تھوکنے پر، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے
मुबारक थूक को अपने जिस्म पर मलते हैं, जख्म खत्म हो जाता है, उनके थूक में शिफा है। तेरे थूक पे कोई थूकने के लिए तैयार नहीं। आखिर तू किस तरह कहता है कि तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है? आखिर तू किस तरह दावा करता है कि तुझ में और आका में कोई फर्क नहीं? और फिर तू अपने नाक की रतूबत को देख ले, अपनी बलगम को देख ले, लुआब दहन को देख ले। तू नाक की रतूबत को थूक कर देख, अपनी बलगम थूक कर देख। लोग देखने के लिए तैयार नहीं हैं, कराहत महसूस करते हैं, नफरत महसूस करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक की रतूबत बुखारी तूने भी पढ़ी है, बुखारी मैंने भी पढ़ी है, लेकिन तुझे आज कंजुल हुदा के मजमे में सही बुखारी सिखाऊं, आज तुझे बताऊं सही बुखारी क्या है। कभी काश तूने इश्क की ऐनक लगा के सही बुखारी का मुताला किया होता। अनिल मिस्वर इब्न मखरमा व मरवदत व मरवान रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला और इन उर्वत जअल यरमुक़ अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल फ़वल्लाहि मा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वदूहिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में उर्वा कहते हैं कि जब भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते, जब भी मैं मुस्तफ़ा करीम को देखता, मुस्तफ़ा करीम अपना लुआबे दहन फेंकते, मुस्तफ़ा करीम अपने नाक मुबारक की रतूबत फेंकते, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मेरे आका के नाक की रतूबत को अपने हाथों में लेते, अपने चेहरे पे मर लिया करते, अपने जिस्म पे मर लिया करते। तेरे नाक की गंदगी है, मुस्तफ़ा के नाक से भी नूर निकलता है, मुस्तफ़ा के नाक से भी नूर निकलता है। फिर भी तू कहता है कि तू मुस्तफ़ा की तरह, फिर भी तू कहता है हम में और मुस्तफ़ा में फर्क नहीं, हम मुस्तफ़ा की तरह। अरे तू अपने पसीने पे गौर कर ले, अपने पसीने पे गौर कर ले, देख ले अपना पसीना, तेरे जिस्म से पसीना निकलता है, तेरे करीब से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं, तेरे करीब से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? बदबू आती है, बदबू आती है, तकलीफ होती है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, काश के तूने बुखारी पढ़ी होती, काश के तूने बुखारी किसी आशिक रसूल से पढ़ी होती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना तू क्या जाने क्या है। उम्मे सुलैम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना एक बोतल में जमा कर रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख खोलते हैं, फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मा तस्नईन या उम्मे सुलैम, है उम्मे सुलैम क्या कर रही है, क्या कर रही है? उम्मे सुलैम अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरजू बरकतहु लिसिबियानिना क़ाला असबती। उम्मे सुलैम कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूं। आपके पसीने से बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। उनका पसीना बरकत, उनका पसीना मुअत्तर और मुअंबर कर दे आबो हवा को। तू कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह, तेरे पसीने को कोई देखने के लिए तैयार नहीं। तेरे जिस्म के अंदर जो खुराक जाती है गलाजत बन के निकलती है, बदबू फैलाती है। लेकिन अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तअतिल ख़ला फला नरा शयअन मिनल अज़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नजिदु राइहतल मिस्क। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आप जब बैतुल खला तशरीफ ले जाते हैं, हम कभी कभी आयशा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, हम जाते हैं देखते हैं आका कुछ नजर नहीं आता, फकत कस्तूरी की खुशबू फैली हुई होती है। तेरे जिस्म के अंदर गज़ा जाए, बदबू बन के बाहर निकले, बदबू फैलाए। मुस्तफ़ा करीम के जिस्म के अंदर गज़ा जाए, कस्तूरी की मुश्क आए, कस्तूरी की खुशबू आए, आबो हवा मुअत्तर और मुअंबर हो जाए। मैं कहता हूँ तेरा जिस्म मुस्तफ़ा के जिस्म की तरह नहीं। अपने खून पे कभी गौर किया है तूने? अपने खून पे कभी गौर किया है तूने? अपने खून को देखा है? नजासत गलीज़ा है तेरा खून। तेरा खून क्या है? नजासत गलीज़ा है। किसी कपड़े पे लग जाए, उस कपड़े को पहन के नमाज नहीं अदा की जा सकती, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये तेरा खून है। कोई तेरा खून पीने के लिए तैयार नहीं, तेरे खून का कोई प्यासा नहीं। हाँ, गुस्ताखे रसूल है तो तेरे खून के प्यासे बहुत होंगे, उस माना में तो बहुत होंगे, लेकिन कोई तेरे खून को पीने वाला नहीं होगा। उस माना में तेरे खून के प्यासे बहुत होंगे, लेकिन कोई तेरे खून को पीने वाला नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मेरे आका का खून पी लिया था। सईद बिन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जनाब मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका के जिस्म अथर पर
जख्म देखा, जख्म देखा, फौरन जख्म चूस लिया, आका का जख्म चूस लिया, आका का खून पी लिया, आका का खून पिया। सहाबा देख रहे हैं ये क्या करेंगे, खून को थूकेंगे कहाँ, देख रहे हैं क्या जमीन पर थूकेंगे, कहाँ थूकेंगे। पूछा है सहाबी खून कहाँ थूकोगे, कहा ये खून मुस्तफ़ा है, इसे जमीन पर नहीं गिरने दूंगे। कहा क्या करोगे, क्या करोगे, कहा करूंगा क्या, निगल लिया है, पी लिया है। मेरे आका ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले, जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले। कोई तेरा खून पिए, हराम करे, गुनाह करे, खुदा नाराज हो, रब नाराज हो, अल्लाह नाराज हो, जहन्नुम में जाए। कोई मुस्तफ़ा का खून पिए, जन्नत में मौजें करे। तो मैं देखना चाहता हूं कहां मैं और तू, कहां मुस्तफ़ा। नहीं नहीं, अभी मैं जारी रखता हूं। कहां मैं और तू, हाथ उठा के कहें, कहां मैं और तू, कहां मैं और तू, कहां मैं और तू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। कुछ तुझसे भी प्यार के मुद्दई होंगे ना, लोग कहते होंगे हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या मुस्तफ़ा के आशिकों का हाल देखा है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब मालूम होता है कि चिरागे नबूवत कब्र अनवर में क़याम पजीर हो चुके हैं, मेरे आका का विसाल हो चुका है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी कौन है, ये सहाबी मुस्तजाबुद्दावात हैं, आशिकों के सरदार हैं, आका के बहुत बड़े आशिक हैं। अपनी आंखों से इन्हें बड़ा प्यार था, अपनी आंखों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। पूछने वाले पूछते आंखों से क्यों मोहब्बत है, कहते अर्ज करते बयान फरमाते आंखों से फकत इसीलिए मोहब्बत है कि इन आंखों से चेहरा वद्दुहा देखता हूँ, इन आंखों से चेहरा मुस्तफ़ा देखता हूँ। जब अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे आका विसाल फरमा चुके हैं, ये ख्याल गुजरा अब ये आंखें किस काम की, अब ये आंखें किस काम की, अब इन आंखों का क्या करना। अरे यही तो, इन आंखों का फायदा यही था, इन आंखों का मकसद ही यही था। ये आंखें आका का चेहरा दिखाती थी, आका का दीदार कराती थी। उसी वक्त दस्ते दुआ बुलंद किए बारगाह खुदाबंदी में मुल्तजी होते हैं, मेरे अल्लाह है, मेरे अल्लाह मेरी आंखों का नूर ले ले, काश के मैं अंधा हो जाऊं। दुआ करते हैं मौला मुझे नबीना कर दे। उनकी दुआ थी, मुस्तजाबुद्दावात थे। तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। दुआ करते हैं कि मौला मैं नाबीना हो जाऊं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है, नाबीना हो जाते हैं। आका से इतना प्यार कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। लोग तुझे कहते हैं कि तुझसे मोहब्बत है, क्या ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं तेरे, क्या ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं तेरे। जब खैबर फतह हुआ ना, तो एक दराज गोश, एक गदा मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दराज गोश, एक गदा आका की बारगाह में आका से कलाम करता है, आका से गुफ्तगू कर रहा है। तू कहता है आका को फ़कत अरबी आती है, अरबी के अलावा आका को कोई ज़ुबान नहीं आती। मैं कहता हूँ इंसानों की ज़ुबानें तो कुजा, आका तो हैवानों की ज़ुबानें भी जानते हैं, आका तो नबातात की ज़ुबानें भी जानते हैं, आका तो जमादात की ज़ुबानें भी जानते हैं, आका तो शजरात की ज़ुबानें भी जानते हैं, आका हर ज़ुबान जानते हैं। लेकिन तूने आका की अज़मत को समझा ही नहीं, आका की अज़मत को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो जनाबे वो दराज़गोश आका की बारगाह में हाजिर होता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी नस्ल के 70 हिमार ऐसे हो गुजरे हैं जिन पर अंबिया ने सवारी की। आका मेरे दिल में भी तमन्नाएं मचल रही हैं, मेरी भी एक आरजू है कि काश कमली वाला मुझ पर सवार हो जाए। आका मेरी भी एक तमन्ना है, वो गदा है, दराज गोश है, तमन्ना का इजहार कर रहा है। आका ने अपनी गुलामी में कबूल फरमा लिया। आका ने प्यार से उसका एक नाम रखा, याफूर नाम रखा। लोग गदा कहते हैं, मैं जनाबे याफूर कहता हूँ, मैं जनाबे याफूर कहता हूँ। और जनाबे याफूर का मकाम क्या है, जनाबे याफूर का मकाम क्या है। जब आका की गुलामी आगे, आका उन पर सवारी भी करते, सवार भी होते, पैगाम रसाई का काम भी करते। और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बन गए। जनाबे याफूर आका के कासिद बन गए, आका का पैगाम पहुंचाया करते थे। जब भी आका किसी सहाबी को तलब करते, जनाबे याफूर तैबा की गलियों में घूमते घूमते आका का पैगाम लेके तैबा की गलियों में झूमते झूमते सहाबा के दरवाजों पर जाते, अपना सर सहाबा के दरवाजों पर मारते, दस्तक देते। सहाबी जब घर से निकलता, दरवाजा खोलता,
जनाब याफूर को देखकर समझ जाता मदीने वाले का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। पैगाम रसाई का भी काम करते, आका के दीवाने थे, आका के आशिक थे जनाब याफूर। जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का विसाल हो गया है, जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का इंतकाल हो गया है, जनाब याफूर ने क्या किया जानते हो? जनाब याफूर ने क्या किया? कहा अब खाक है इस जिंदगी पर, इस जिंदगी का क्या करना। एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। कहा इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, काश हमें भी जनाब याफूर का इश्क मिल जाए, काश हमें भी वो तड़प मिल जाए, काश हमें भी वो वारफ्तगी मिल जाए, वो दीवानगी मिल जाए, काश हमारे दिल में भी ये तमन्नाएं मचलना शुरू हो जाएं जो इश्क सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाया था। काश हमें उस इश्क की एक चिंगारी नसीब हो जाए और हम भी कहें कि हार थीवा तेंडे गल दावे माही नी में असलू दूर न थीवा, या तेंडे पैरां दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मदीवा, इजज नियाज है मुड्डी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा नी में वेख वेख के जीवा, यार फरीदा मुकते दिल भरदा नी में वेख वेख के जीवा। काश हमें ये मोहब्बत मिल जाए, आका की रफाकत की तमन्ना पैदा हो जाए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे आखिर किस हैसियत से तुम कहते हो कि तुम मुस्तफ़ा करीम की तरह हो? क्या तुम्हारी आंखें मुस्तफ़ा करीम की तरह हैं? क्या तुम्हारी ज़ुबान मुस्तफ़ा करीम की तरह है? तो सुन लो, तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौना, है सहाबा मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। फरमाया इन्नी अस्माऊ माला तस्माऊना, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया है सहाबा मत समझना कि मैं सामने देख रहा हूं, जिस तरह सामने देख रहा हूं ऐन इसी तरह पीछे भी देख रहा हूं। फतहुल बारी में इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका का कल्ब अथर देखा तो देखते हैं कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उज़ुनानी तस्माआनी। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को देखा तो देखते हैं कि आका के दिल में भी दो आंखें हैं, आका के दिल में भी दो कान हैं। तेरी दो आंखें, तेरे दो कान, आका की चार आंखें, चार कान, फिर भी कहता है तू मुस्तफा की तरह है। फिर भी कहता है तेरी आंखें मुस्तफ़ा करीम की आंखों की तरह नहीं, तेरी अदाएं मुस्तफ़ा करीम की अदाओं की तरह नहीं। तू कहता है तू अपने हाथों को देख ले, तू उठा ना उंगली, देखते हैं क्या होता है। वो उंगली उठाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तू फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है। वो हाथ उठाएं, डूबा सूरज उफक पर लौट आए। फिर तू उठा के देखना, तू किसी जंगल बयाबान में हो, अकेला हो, पानी की तड़प हो, पानी की ज़रूरत हो, तू लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे दे के मर जाए, तुझे पानी ना मिले। मुस्तफ़ा करीम को पानी की ज़रूरत हो, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा को पानी की ज़रूरत हो। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबा हैं, मेरे आका हैं, सहाबा को प्यास लगती है, पानी कम पड़ जाता है, मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तेरा हाथ मेरे आका की हाथ की तरह नहीं। और फिर तू कहता है वो नूर नहीं है। तू अपना हाथ किसी चिराग पर रख के देख, अपने हाथ को किसी चिराग पे रख के देख, वो चिराग की रोशनी खत्म हो जाएगी। रोशनी थी पहले, अंधेरा फैल जाएगा। तेरा हाथ किसी चिराग पर आता है तो चिराग की रोशनी खत्म हो जाती है। और मुस्तफ़ा करीम का हाथ, दो सहाबी रात की तारीकी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में है। रात में तारीकी है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, रात बीत जाती है। सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होते हैं, आका से दूर होते हैं। रात की तारीकी में दोनों सहाबा के हाथों में दो छड़ियां हैं। आका के हाथ का फैज़ देखना चाहता है, उस नूर के हाथ का फैज़ देखना चाहता है। मेरे आका के हाथ का फैज़ जारी होता है, आका के नूरानी हाथ का फैज़ जारी होता है। वो छड़ी नूर बन जाती है, वो छड़ी नूर बन जाती है। उस छड़ी के नूर को देख के सहाबा सफर इख्तियार करते हैं, रास्तों का तयन करते हैं। और जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से जुदा होता है, उसके हाथ में एक छड़ी थी, दूसरे के हाथ में छड़ी थी, नूरे मुस्तफ़ा की बरकत देखना चाहता है। एक छड़ी का नूर दूसरी छड़ी को मिल गया, सहाबा जुदा हो गए, दोनों छड़ियां नूर बन गई।
अरे जिनके हाथ के नूर में इतनी ताकत है, उनकी ज़ात को तू नूर नहीं मानता। तू कहता है वो नूर नहीं है, और तू कहता है तेरा हाथ उनके हाथ की तरह है। मैंने इब्तिदा में कहा था ना, ये जो नौजवान कहते हैं अरे अरे ये क्या है, ये क्या मोहब्बत है, ये क्या दीवानगी है, तैबा की खजूर, तैबा का फल, तैबा की तस्बीहात, खाके तैबा, ये क्या है, चूमते हो, हाथों में लगाते हो, मस करते हो, जिस्म पर मलते हो, ये क्या है, ये बिदआत कहाँ से आ गई है? ये बिदआत नहीं है, ये हमने सहाबा से सीखा है, ये हमने ताबईन से सीखा है, ये अदाएं हमने ताबईन से सीखी हैं, ये अदाएं हमने सल्फुस सालिहीन से सीखी हैं। और ज़रा गौर करना, इस बात को भी समझ लेना। हज़रत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, उनके शेख हैं, मुस्नद अबू याला की रिवायत है। मेरे रावियों पर जरा करना चाहते हो तो करके देख लेना, मैं चैलेंज करता हूँ, आओ रावियों पर जरा करके देखो। मुस्नद अबू याला की हदीस है, जनाब साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरे शेख हैं अनस बिन मालिक हैं। जब कभी मैं अनस बिन मालिक को मिलता ना, जब कभी अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करता, फ़आख़ुज़ु बियदैहि, मैं उनके हाथ पकड़ लेता, मैं उनके हाथ पकड़ लेता। तुम कहते हो ना पीर के हाथ क्यों चूमते हो, शेख के हाथ क्यों चूमते हो, ये कहाँ से बिदआत ली है? फरमाया मैं उनके हाथ पकड़ लेता, हाथ पकड़ लेता और फिर कहता हातैनिल यदैनिल लतैनि मस्सता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मैं कुर्बान जाऊं इन हाथों पर, मैं सदके जाऊं इन हाथों पर, ये वो प्यारे हाथ हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा के हाथों को छुआ था। फरमाते हैं कभी कभी जब मोहब्बत उरूज पर होती, जब इश्क अपने जौबन पर होता, कभी कभी ऐसा भी होता कि मैं अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों को चूम लेता, उनकी आंखों को चूम लेता। मुस्नद अबू याला की रिवायत कि मैं उनकी आंखों को चूम लेता और आंखों को चूमते हुए कहता बी अबी हातैनिल ऐनैनिल लतैनि रअता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कुर्बान जाऊं मेरे माँ बाप कुर्बान, इन प्यारी आंखों पर, इन प्यारे नैनों पर, ये वो प्यारी आंखें हैं जिन्होंने कौनैन के वाली का हसीन चेहरा देखा था। जिन्ना अखां दिल भर डिठा ओ अखां तक लईयां, तू मिलिया ते सजन भी मिलिया, हुण आसां लग पईयां। तुम कहते हो क्यों चूमते हो, तैबा के ज़ायरीन की आंखें क्यों चूमते हो, मदीनतुल मुनव्वरा से आने वालों की आंखें क्यों चूमते हो? अबुल आलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु एक और ताबई हैं, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें एक सेब देते हैं, एक सेब देते हैं। वो कहते हैं ना कि तैबा की खजूरों से प्यार क्यों है तुम्हें, तैबा की तस्बीहात से प्यार क्यों है तुम्हें? मैं कहता हूँ अहले सुन्नत का हर अमल, अहले सुन्नत का हर अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित है, सहाबा की सुन्नत से साबित है। जो बात पूछोगे दलील दूंगा, कुरान से दूंगा, हदीस से दूंगा, अक़वाले सहाबा से दूंगा, सल्फुस सालिहीन की आरा से दूंगा। अबू लालिया हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं, आप उन्हें एक सेब देते हैं। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें एक सेब देते हैं, एक सेब इनायत फरमाते हैं। अनस बिन मालिक के हाथ से जनाब अबू लालिया रदी अल्लाह ताला अन्हु सेब वसूल करते हैं, देखते हैं सेब को, चूमते हैं सेब को, सेब को चूमते हैं, चूमते हैं, फिर मुंह पर मलते हैं, फिर मुंह पर मलते हैं, फिर जिस्म पर मलते हैं, फिर फरमाते हैं तुफाहतुन मस्सत कफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये कैसा प्यारा सेब है, इसने उस हाथ को छुआ है जिस हाथ ने मुस्तफ़ा के हाथ को छुआ था। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, है कोई तुझसे ऐसी मोहब्बत करने वाला, है कोई तेरा कोई आशिक ऐसा? तेरे हाथ मुस्तफ़ा के हाथ की तरह नहीं, तेरी उंगलियां मुस्तफ़ा की उंगलियों की तरह नहीं, तेरा जिस्म मुस्तफ़ा के जिस्म की तरह नहीं, फिर भी कहता है वो हमारी तरह। तेरा जिस्म कसीफ है, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, उनका जिस्म ऐसा लतीफ़ है, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जिस्म से गुजर जाती हैं, साया बनता ही नहीं, तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। तेरे पाँव मुस्तफ़ा की तरह हैं, तू अपने पाँव को मुस्तफ़ा के पाँव की तरह समझता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पर तशरीफ ले जाते हैं, ओहद पर तशरीफ ले जाते हैं और साथ मेरे आका के जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं। ओहद पर कपकपी तारी होती है, कुछ ने कहा ओहद को वजद आ जाता है, आका को देखकर वजद में आ जाता है। मेरे आका एड़ी मारते हैं, ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी और 2 शहीद और 1 सिद्दीक है। ओहद मेरे आका की इताअत करता है, मेरे आका
आका के पाँव की एड़ी के हुक्म पर अमल करता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी जलजले आते हैं ना, ले जा अपने 4 मौलवियों को, कह दे जा जब जलजला आए ना, कह ज़मीन को, है ज़मीन तुझ पर नबी को बशर कहने वाले 4 मौलवी खड़े हैं, हम भी एड़ी मारते हैं, देखते हैं क्या तेरे पाँव में वो तासीर है कि नहीं, क्या तेरे पाँव में वो असर है कि नहीं। अरे तेरा पाँव मुस्तफ़ा करीम के पाँव की तरह नहीं, तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है। तू पाँव उठा ना, पाँव उठा ज़मीन से, देखते हैं तेरा पाँव तुझे कहाँ ले जाता है। ज़मीन की कशिशे शकल तुझे ज़मीन पर गिरा देगी, ज़मीन की ग्रेविटी तुझे ज़मीन पर गिरा देगी। मुस्तफ़ा करीम पाँव उठाते हैं, मुस्तफ़ा करीम पाँव उठाते हैं, 7 आसमानों को चीरते हुए, सिदरातुल मुंतहा से गुजरते हुए मकामे काबा कौसैन फ़ौ अदना पर पहुंच जाते हैं। तू सफर पर जाता है, तू सफर पर जाता है, एयरपोर्टों के चक्कर, एयरपोर्टों के धक्के खाता है, जहाज तलाश करता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम जब परवाज करते हैं तो उनकी परवाज से आसमान से नूरानी जहाज बुराक की सूरत में आता है। तू फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह, अरे अकल के नाखून ले, कुछ तो अकल की बात कर, तू कैसे मुस्तफ़ा करीम की तरह हो सकता है। तेरे हाथ उनके हाथ की तरह नहीं, तेरे पाँव उनके पाँव की तरह नहीं, तेरी जुबान उनकी जुबान की तरह नहीं। उनकी जुबान का तज़किरा तो रब कुरान में करता है, फरमाया फ़इन्नहु यस्सरनाहु बिलिसानिक। उनकी आंखों का तज़किरा रब कुरान में करता है, वला तमुद्दुन्ना अला ऐनैक। उनके दिल का तज़किरा रब कुरान में करता है, नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। उनके सीने का तज़किरा रब कुरान में करता है, अलम नशरह लका सदरक। उनकी कमर का तज़किरा रब कुरान में करता है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ दहरक। रब महबूब के जिस्म के आज़ा का तज़किरा कुरान में करता है। उनकी आंखों का तज़किरा रब कुरान में करे, उनके चेहरे का तज़किरा रब कुरान में करे, फरमाए क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मेरे महबूब की अज़मतों के तज़किरे, जिस्म के आज़ा के तज़किरे रब कुरान में करे, तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। मैं कहता हूँ अब फिर एक मर्तबा फिर कह देना, कहाँ मैं और तू, 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 कहाँ मुस्तफ़ा, कहाँ मैं और तू, कहाँ मुज्तबा, कहाँ मैं और तू, कहाँ कौनैन के वाली, कहाँ मैं और तू, कहाँ खिसरवे खूबा, कहाँ मैं और तू, कहाँ सयाहे लामकां, कहाँ मैं और तू, कहाँ नाज़िशे हर दो जहां, कहाँ मैं और तू, कहाँ चारा साजे दर्दमंदा, कहाँ मैं और तू, कहाँ फ़ख्रे रसूला, कहाँ मैं और तू, कहाँ जाने कायनात, कहाँ मैं और तू, कहाँ जाने कायनात, कहाँ मैं और तू, कहाँ कौनैन के वाली, कहाँ मैं और तू, कहाँ मिज़दाक़े लौला कलमा खलक़तु दुनिया, कहाँ मैं और तू, कहाँ मिज़दाक़े लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कहाँ मैं और तू, कहाँ मिज़दाक़े लौला कलमा खलक़तुल आलम, कहाँ मैं और तू, और कहाँ वो कि अगर वो न होते ज़मीन न होती, वो न होते आसमान न होते, वो न होते ये चांद तारे न होते, वो न होते ये शम्सो कमर न होते, वो न होते ये सैयारे न होते, अगर वो न होते ये लहलहाते सरसब्ज़ दरख्त न होते, वो न होते इन ज़मस्तानी हवाओं की सरसराहट न होती, वो न होते ये चमक दमक न होती, वो न होते ये रोशनियां न होती, वो न होते जमादात न होते, वो न होते नबातात न होते, वो न होते शजरात न होते, वो न होते कुछ न होता, वो न होते कुछ न होता, तू न होता सब कुछ होता। क्या सुना आपने? वो न होते कुछ न होता, तू न होता सब कुछ होता। अरे अगर तेरा होना उनके होने की तरह नहीं है तो तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? तू चलता है, तेरे चलने से किसी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, तू ठहरता है, रुकता है, तेरे रुकने से कोई असर नहीं पड़ता, तू मुस्कुराए कुछ नहीं होता, तुझे गुस्सा आए कुछ नहीं होता, तू आंख बंद करे कुछ नहीं होता, तू आंख खोले कुछ नहीं होता। मदीने वाला चलता है तो दरियाओं को रवानियां मिल जाती हैं, मेरे आका ठहरते हैं तो पहाड़ों को ठहराव मिल जाता है, मेरे आका मुस्कुराते हैं तो कलियों को मुस्कुराना आ जाता है, मेरे आका मुस्कुराते हैं तो कलियों को मुस्कुराना आ जाता है। उन्हें गुस्सा आए आसमां सुर्ख हो जाए, कमली वाला आंखें बंद करे रात को अंधेरा मिल जाए, मुझे कहने दीजिए मदीने वाला आंखें खोले तो सुबह को सवेरा मिल जाए।
گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور صنعت مسمت میں کیا پیارا کلام لکھا ہے میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے۔ غالب کو پڑھا ہم نے، شکیل بدیونی کو پڑھا ہم نے، فیض احمد فیض کو پڑھا ہم نے، میر تقی میر کو پڑھا ہم نے، ذوق کو پڑھا ہم نے، لیکن جو ذوق اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا۔ فرمایا یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لبے جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ